that God is on her side. That's the faith that Rahab had. She knew that God was with the Israelites, and then she risked her life and she protected them, and she was fearless. और यही था राहाब का विश्वास। वह जानती थी कि परमेश्वर इज़राइलियों के साथ है और फिर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी रक्षा की और वह निडर थी। See, when the officers came and asked her, she must have been like, she's a woman, and these officers came, where are the people? We saw the spies, where are they? देखिए, जब अधिकारी आए होंगे और उससे पूछताछ की होगी, अब यह एक स्त्री है और इन अधिकारियों ने उसके पास आकर कहा होगा, कहाँ है वे लोग? हमने भेदिए देखे, वे कहाँ हैं? They are here. We want to search your house. Where are they? वे यही हैं। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। वे कहाँ हैं? And they may have intimidated her, और हो सकता है कि उन्होंने उसे डराया धमकाया भी हो। but she was fearless. She said, oh, those spies. Oh, yes, I know about them. परंतु वह निडर थी। उसने कहा, आह वे भेदिए, ओह हाँ मैं उनके बारे में जानती हूँ। They just went there. You just missed them. Just go there and you'll find them. वे अभी अभी यहाँ से निकले हैं। आप बस उनसे चूक गए। आप उस तरफ जाएं और आप उन्हें ढूंढ निकालेंगे। She was fearless when it came to for the right things. वह सही चीजों की जब बात आती थी तो निडर थी। It's like a brother, you know a brother Andrew who distributed Bibles, and Corrie ten Boom, who was fearless in the time of difficulties. आप उस भाई को जानते होंगे, ये उसी भाई के समान है, भाई एंड्रयू, जो बाइबल बांटते थे, और कोरी टेन बूम जो कठिनाइयों के समय में निडर थी। When there's real faith in our hearts, there'll be fear will be driven away. Faith and fear are opposites. जब हमारे हृदय में सच्चा विश्वास होगा तो भय दूर भाग जाएगा। विश्वास और भय एक दूसरे के विपरीत हैं। When faith comes in, fear goes out. When fear comes in, we allow fear to come in, then we lose the faith. Little by little, we lose faith. जब विश्वास आता है तो भय चला जाता है, और जब भय आता है या हम भय को प्रवेश करने की अनुमति देते हैं तो फिर हम विश्वास को खो देते हैं। धीरे धीरे हम विश्वास को खोते जाते हैं। That's why when there's faith, there's fearlessness for the right thing. इसीलिए जब विश्वास होता है तो सही बात के लिए निडरता भी होती है। Now, we might be fearless about the wrong things by telling lies, by taking a bribe or giving a bribe and telling lies. Those are all the wrong things which we should never do. अब हम गलत बातों के बारे में भी बेखौफ या निडर हो सकते हैं, जैसे झूठ बोलकर रिश्वत लेना या रिश्वत देना। ये सभी गलत चीजें हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। Like even if we tell a lie, sometimes we tell lies to our children, small lies, so that we can just get them to believe something. जैसे कि हम कभी कभी अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। आप जानते हैं, वो छोटे मोटे झूठ, ताकि हम उन्हें किसी बात का यकीन दिला सकें। They can see through us. Say, Mommy is telling a lie now. It's not true. They can see through us. पर वे हमारे भीतर देख सकते हैं कि अब माँ झूठ बोल रही है, ये सत्य नहीं है। वे हमारे भीतर झांक सकते हैं। So, fearlessness should be for the right things. इस कारण निडरता या निर्भयता सही चीजों के लिए होनी चाहिए। And when she answered the officers, she was so bold that they believed her. और जब उसने अधिकारियों को प्रत्युत्तर दिया तो वह इतनी साहसी थी कि उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। They didn't see like, oh, yeah, she's saying this, but I wonder if it's true, because her face looks like as if she's not telling the truth. उनको तनिक भी शंका ना हुई कि ओह, यह कह तो रही है, किंतु क्या ये सच भी है? क्योंकि उसका चेहरे का हाव भाव तो ऐसा लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मानो वह सच ना बोल रही हो। And she was so fearless when she answered that they believed her and they went away. और वह इतनी निडर थी कि उसके उत्तर देते ही उन्होंने उस पर यकीन कर लिया और वे वहां से चले गए। And another thing about her faith was she was hospitable to God's people.
और उसके विश्वास के बारे में एक और बात थी कि वह परमेश्वर के जनों के प्रति बहुत सत्कारशील थी। Now, sometimes we can be foolish and be hospitable to all kinds of people who come and take advantage of that. कभी कभी हम मूर्ख हो सकते हैं और हर प्रकार के लोगों का अतिथि सत्कार कर सकते हैं जो हमारा फायदा उठाते हैं। God of us. God wants us to be wise. Don't be hospitable to people who will take advantage of us and take us for a ride and plunder our things. परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, उन लोगों की मेहमान नवाजी ना करें जो कि हमारा फायदा उठाएं और हमें मूर्ख बनाएं और हमारी चीजें उठा लें। And I've heard of people in India who received their friends and allowed them to have access to everything. मैंने भारत में ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने अपने मित्रों का स्वागत किया और उन्हें अपने हर चीज का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। And some of them stole and some of their valuables and left. I know true cases. और उनमें से कुछ ने उनका कुछ कीमती सामान चुरा लिया और चले गए। मुझे ऐसी सच्ची घटनाओं के बारे में पता है। Respectable people who had this disease of kleptomania, stealing, habit of stealing things. बहुत इज्जतदार लोग जिन्हें क्लेप्टोमीनिया की बीमारी थी। क्लेप्टोमीनिया आप जानते हैं, उन्हें चोरी करने की आदत थी, चीजें चुराना। They didn't know. They would allow them to come in and then they steal their money, steal their valuables. And later they couldn't believe that this person came and stole my things. So, और वे ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश करने देते थे और फिर इन व्यक्तियों ने उनके पैसे चुरा लिए, उनका कीमती सामान चुरा लिया और बाद में उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यह व्यक्ति जो आया था उसने मेरी चीजें चुरा ली। we should be wise, but open our home to God's children. Offer hospitality. In Hebrews 13:1, it says um, to be hospitable. इसीलिए हमें बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की संतानों के लिए अपना घर खोलें, उनका अतिथि सत्कार करें। इब्रानियों 13:1 में कहा गया है, अतिथि सत्कार करो। And there's another verse in Hebrews which says, be hospitable, but practice hospitality, but do it without grumbling. और इब्रानियों में एक और आयत है जो कहती है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। If somebody comes and we are hospitable to them and inside we are complaining, so why they taking my time? Why did they turn up at this? यदि हमारे घर कोई आते हैं और हम उनका अतिथि सत्कार करते हैं और मन ही मन हम शिकायत करते हैं कि वे मेरा समय क्यों ले रहे हैं, वे इस समय क्यों आए, This time I'm so busy and why this, why that, then that hospitality is all cancelled. It's of no use. वे इस समय क्यों आए, मैं अभी इतनी व्यस्त हूँ और ऐसा क्यों और वैसा क्यों, फिर इस रीति से अतिथि सत्कार के कोई मायने नहीं है और ये अतिथि सत्कार किसी भी काम का नहीं है। But practice hospitality without grumbling and complaining. That's the verse in Hebrews which says, और इस कारण बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत एक दूसरे का अतिथि सत्कार कीजिए। इब्रानियों में यह आयत इसी प्रकार से वर्णन करती है। so that's a lesson we can learn from her. Her faith led to being hospitable to God's family. और यह एक और सबक है जो हम उससे सीख सकते हैं। उसके विश्वास के चलते उसने परमेश्वर के परिवार की पहुनाई की। Then she had a burden for her family. और फिर उसका अपने परिवार के लिए भी एक बोझ था। See, when she knew that she would be protected and she'd be saved. देखिए, वह जानती थी कि वह सुरक्षित रहेगी और वह बच जाएगी। But she thought, what about my dad and mom, my siblings? They also should, they might be destroyed. I want them also. परंतु उसने सोचा, मेरे पिता और मेरी माँ और मेरे भाई बहनों का क्या, उन्हें नष्ट किया जा सकता है, मैं उन्हें भी चाहती हूँ। She said, please, can my parents and my siblings also be spared? और उसने विनती की, कृपया मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को भी आप जीवित रख छोड़ें और उन सभी का प्राण भी मरने से बचाइएगा। And the spy said, yes, you bring them all, and as long as they are under your roof, they'll be protected. और भेदियों ने कहा, हाँ,
तुम उन सबको ले आओ और जब तक वे तुम्हारी छत के नीचे हैं वे सुरक्षित रहेंगे। If they leave the house and they go out, we can't guarantee their protection. परंतु यदि कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले तो हम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। And that reminds us of the time when the children of Israel were leaving Egypt. और यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब इज़राइल की संतानें मिस्र छोड़कर जा रहे थे। The Lord said, all of you stay inside the house and you paint the doorpost with the blood of the lamb. प्रभु ने कहा, तुम सभी लोग घर के भीतर रहना और उनके द्वार के दोनों ओर चौखट के सिरे पर मेमने का लहू लगाना। And as long as that when the angel of death comes and sees the blood on the doorpost, you'll be safe. But you must be inside that house. और जब वह नाश करने वाला अर्थात मृत्यु का दूत द्वार के सिरे और दोनों ओर पर उस लहू को देखेगा तो तुम सुरक्षित रहोगे, परंतु तुम्हें उस घर के भीतर ही रहना होगा। So the law, that's what the spies told Rahab to do, and she did that, and she was protected. सो भेदियों ने राहाब को ये करने को कहा और उसने वैसा ही किया और वह सुरक्षित रही। Like that, we must have a burden for our loved ones. ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने प्रियजनों के लिए बोझ होना चाहिए। Sometimes we think, oh, I am safe, everything is okay with me and my children. कभी कभी हम सोचते हैं कि ओह, मैं सुरक्षित हूँ, मेरे और मेरे बच्चों के लिए सब कुछ ठीक है। And sometimes our parents and our siblings, there's nobody to tell them, there's nobody even to pray for them. और कभी कभी हमारे माता पिता और हमारे भाई बहनों को बताने वाला कोई नहीं होता, उनके निमित्त प्रार्थना करने वाला भी कोई नहीं होता। Some of them may not want to hear from us. Oh, enough, we've heard enough from you. और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग हमसे सुनना भी नहीं चाहते हैं और कहते हो, ओ, हमने तुम्हारा बहुत सुन लिया। But at least we can pray for them and say, Lord, have mercy on my family. Don't let them perish. Let them hear these good news. लेकिन कम से कम हम उनके निमित्त प्रार्थना तो कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु, मेरे परिवार पर दया कीजिए, उन्हें नष्ट ना होने दीजिएगा, वे भी इस सुसमाचार को सुनने। Have a burden for our loved ones, especially our household of the Lord, our own family, and then we can have the burden for people outside our home. हमारे भीतर अपने प्रियजनों के निमित्त ये प्रार्थना का बोझ होना चाहिए, खासकर परमेश्वर के घराने के निमित्त, तत्पश्चात अपने परिवार के निमित्त और फिर हमारे मन में बाहर के लोगों के लिए भी ये प्रार्थना का बोझ होना चाहिए। That's what Rahab had. राहाब के भीतर यही बोझ था। So pray regularly for our family members, our siblings, our parents, and others whom we really love. Don't forget to pray for them. And of course, our children. इस कारण नियमित रूप से प्रार्थना करें, अपने परिवार के सदस्यों, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता और दूसरों के लिए जिनसे हम बेहद प्रेम करते हैं, उनके निमित्त प्रार्थना करना ना भूलें। और अवश्य है, हमारे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करें। Rahab wasn't married, but राहाब विवाहित नहीं थी। we have a burden for a responsibility for our children to pray for them and to keep them secure in the comfort of our home. किंतु यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के निमित्त प्रार्थना करें और उन्हें अपने घर के माहौल में सुरक्षित रखें। The security of our home, that the devil doesn't snatch them away from the Lord and go into the world and get lost and perish in the world. हमारे घर में रहते हुए हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, ताकि कहीं शैतान उन्हें प्रभु से छीन ना ले और कहीं उन्हें संसार में ना ले जाए, ना हो कि वे संसार में नाश हो जाएं। So that's our responsibility towards our loved ones. सो यह हमारी जिम्मेदारी है अपने प्रियजनों के प्रति। Then another thing we learn from Rahab is the spies tell you, hang this cord, scarlet cord down your window so we'll know. और फिर राहाब से हम एक और बात जो सीख सकते हैं वह यह है कि भेदियों ने उससे कहा कि अपनी खिड़की में यही लाल रंग के सूत की डोरी बांधकर नीचे लटका देना, ताकि हमको पता चल सके। And that reminds us
of the blood of Jesus. और यह हमें यीशु के लहू की स्मरण दिलाता है। The only way to salvation is through the blood of Jesus. Scarlet, the blood, Jesus' blood was shed for us. There's no other way for us to escape. उद्धार का एकमात्र मार्ग यीशु का लहू है, वो लाल रंग का लहू। यीशु का लहू हमारे निमित्त बहाया गया था। हमारे पास बचने का और कोई मार्ग नहीं है। And uh, if she had said, "Oh, what will other people think seeing this red rope hanging down?" और यदि उसने विचारा होता कि ओह, लोग क्या सोचेंगे अगर वो इस लाल रस्सी को नीचे लटकते हुए देखेंगे, They'll come and ask me curious questions. और वो आकर मुझसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछेंगे। I'm not going to do that. Or when the time comes, I'll do that. If she had delayed, uh, they wouldn't have known. So she obeyed everything that was told her. और मैं ऐसा नहीं करने वाली, या जब समय आएगा तो मैं ऐसा करूंगी। अगर उसने विलंब किया होता तो उन्हें पता नहीं चलता। इसीलिए उसने जो कुछ भी उसको कहा गया था उसका पालन किया। Our safety is in obeying the instructions which the Lord gives us. हमारी सुरक्षा उन निर्देशों का पालन करने में है जो परमेश्वर हमें देते हैं। Then another thing I learned is they were asked to stay inside Rahab's house. और मैंने एक और बात सीखी कि उन्हें राहाब के घर के भीतर रहने के लिए कहा गया था। And that reminds me that our safety is to stay inside God's house, which is the church. Our safety is in the church with the brothers and sisters in the church. और इससे मुझे स्मरण आता है कि हमारी सुरक्षा है कि हम परमेश्वर के उस घर में रहें जो कि कलीसिया है। परमेश्वर के घर में भाइयों और बहनों के बीच रहने में ही हमारी सुरक्षा है। We think like, oh, my relatives will take care of me, or my worldly friends will take care of me when I'm in trouble. There are good people there. हम सोचते हैं कि ओह, जब मैं मुसीबत में पड़ूंगी तब मेरे रिश्तेदार मेरा ख्याल रखेंगे या मेरे संसारिक मित्र मेरा ख्याल रखेंगे। वे अच्छे लोग हैं। But our safety in our spiritual life, our true safety is in the church. परंतु हमारी सुरक्षा, हमारी सच्चाई से भरी आत्मिक जीवन की सुरक्षा कलीसिया में रहने में ही है। We should not neglect the meeting together with God's people. हमें परमेश्वर के जनों से मिलने के अवसर की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। We should not think, oh, today I have a headache, and today I'm busy with other things to do. I'm not going to church. हम इस रीति से कभी ना सोचें कि ओह, आज मुझे सरदर्द हो रहा है और आज मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ, सो आज मैं कलीसिया में नहीं जा सकती। We are the losers. Our यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा। safety is in God's house. और हमारी सुरक्षा परमेश्वर के घर में है। Just like in Noah's time, the safety for them was to be in the ark. All those who are outside the ark, they perished in the flood. ठीक उसी समान जिस प्रकार नूह के समय में कश्ती के भीतर उनकी सुरक्षा थी और जो लोग कश्ती के बाहर थे वे बाढ़ में नाश हो गए। And when she looked out and she saw this parade going on outside her house, और जब उसने बाहर दृष्टि की तो उसके घर के बाहर परेड हो रही थी, चक्कर काटे जा रहे थे। the children of Israel were just asked to go around the house, and then she realized this battle is not going to be won by might, not by power, but by my spirit. और इज़राइल के संतानों को बस शहर के चारों ओर चक्कर काटने के लिए कहा गया था, और फिर उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई ताकत से नहीं जीती जा सकती, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। With the Lord's strength only, we are going to win every battle. केवल प्रभु के सामर्थ्य से ही हम हर युद्ध को जीत सकते हैं। Don't think like, oh, if I do this, if I'm prepared and I have this tactic, I can answer this question and I can tackle this person and I can do this. No. ऐसा ना सोचिए कि हाँ,
अगर मैं यह करती हूँ, अगर मैं इस रीति से तैयारी रखूँ और मेरे पास यह रणनीति है, मैं इस सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकती हूँ और मैं इस व्यक्ति से अपने तरीके से निपट सकती हूँ और मैं ये स्वयं कर सकती हूँ, तो ऐसा सही नहीं है। Our strength is from the Lord. It's not by our own cleverness or anything we have in ourselves, not by might, not by power. But with God's help, we can conquer. हम स्वयं ऐसा नहीं कर सकते। हमारी सामर्थ प्रभु से है। यह हमारी अपनी चतुराई से या हमारे अंदर जो कुछ भी है उसके द्वारा संभव नहीं होगा। ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की सहायता से ही हम विजय हो सकते हैं। And will inherit. And the Lord says the meek will inherit the earth. It's not the strong people, it's the meek. और हमें वह मिरास मिलेगी। परमेश्वर कहते हैं कि दीन लोग पृथ्वी के वारिस होंगे, बलशाली लोग नहीं, अपितु ये वो दीन लोग हैं। We are doing the Sermon on the Mount these days in NCCF. So that's the verse which came to me. If you're meek and weak in God's sight and depend on His strength, then He will take care of every situation. हम इन दिनों एनसीसीएफ में पहाड़ी उपदेश सुन रहे हैं, तो ये आयत मुझे याद आई। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में दीन और बलहीन हैं तथा आप उनकी ही सामर्थ पर भरोसा रखते हैं, तो वे हर स्थिति का ख्याल रखेंगे। And God accepts us as when we come to Him as sinners. If we come, oh, I'm a self-righteous person and I'm good. और जब हम पापी के रूप में परमेश्वर के समक्ष आते हैं, तो परमेश्वर हमें उसी अवस्था में स्वीकार करते हैं। परंतु यदि हम इस रीति से आते हैं कि ओह, मैं तो अपनी नज़र में धर्मी हूँ और मैं अच्छी हूँ, Not done this. I'm not like this other person. I've been good all my life. मैं तो अच्छी हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं इस दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हूँ और मैं अपने पूरे जीवन भर भली ही रही हूँ। If you ask some people to give their testimony, they say, I've always known the Lord from my childhood. अगर आप कुछ लोगों से उनकी गवाही साझा करने के लिए कहें, तो वे बोलते हैं, मैं तो अपने बालकपन से ही सदैव प्रभु को जानती आई हूँ। Then we know a person who says like that has no conviction of the sin and wretchedness in their own life. तो फिर हम जान सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पाप और दरिद्रता का कोई एहसास है ही नहीं। So remember that the Lord accepts us when we come as sinners, as humble and poor in spirit. इसीलिए स्मरण रखें कि प्रभु हमें तब स्वीकार करते हैं जब हम एक पापी के रूप में उनके समक्ष आते हैं। हम विनम्र और आत्मा में दीन पापियों के समान आते हैं। And who tremble at His word, who respect Him, then He accepts us. और जब हम उनके वचन से कांपते हैं, उनका आदर करते हैं, तब वे हमें स्वीकार करते हैं। Another thing which I learned from Rahab was she was loyal to the Lord and the Lord's people, not to her city. जो एक और बात मैंने राहाब से सीखी वह यह है कि वो अपने शहर के प्रति नहीं, बल्कि प्रभु के प्रति निष्ठावान थी और प्रभु के लोगों के प्रति भी निष्ठावान, वफादार थी। She said, "Oh, the city where I grew up, this Jericho is my home. How will I betray them? Will I be? How can I be? Um, um, I need to protect them and save them." उसने ये ना कहा कि ओह, यह शहर जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, यह मेरा यरीहो है, मेरा घर है, मैं उन्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ? मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे उन्हें बचाना चाहिए। Her loyalty was not to that city which was going to be destroyed. उसकी निष्ठा, उसकी वफादारी उस शहर के प्रति नहीं थी जो नष्ट होने वाला था। Just like that, God sees where's our loyalty. Is it our loyalty with worldly things in the world and things of this world and the people of this world? ठीक उसी समान परमेश्वर देखते हैं कि हमारी वफादारी या हमारी निष्ठा कहाँ है। क्या हमारी निष्ठा इस संसार में है, इस संसार की चीज़ों के प्रति है या इस संसार के लोगों के प्रति है, Or is our loyalty to God and God's people? या हमारी निष्ठा परमेश्वर तथा परमेश्वर के जनों के प्रति है। And she accepted everything that God told her to do.
और उसने वह सब कुछ स्वीकार किया जो प्रभु ने उससे करने हेतु कहा था। See, when she was rescued from Jericho, the city of Jericho, while the children of Israel plundered and destroyed and all that, she and her family were brought to the camp of Israel. देखिए, जब उसे बचाया गया, उस समय यरीहो के नगर में इज़राइल की संतानें उस शहर को नष्ट और तबाह कर रहे थे और उसको उसके परिवार समेत इज़राइल की छावनी में लाया गया। And they said, you have to be outside the camp. You can't come in. You have to live outside. And no, she wasn't told how long she'll have to be there. और उन्होंने कहा, तुम्हें छावनी के बाहर रहना होगा, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, तुम्हें बाहर रहना होगा। और नहीं, उन्हें ये नहीं बताया गया था कि वे वहां पे कितने समय तक रहेंगे। It's like a quarantine period for her. यह उसके लिए एक क्वारंटाइन पीरियड अर्थात संरोध के समय के समान था। She could have thought like this, huh, I did so much for these people, for these spies, protected them, saved them. Because of me, this whole city, this whole nation was saved. वह तो ऐसा भी सोच सकती थी कि मैंने इन लोगों के लिए, इन भेदियों के लिए कितना कुछ किया, उनकी रक्षा की, उन्हें बचाया, मेरी वजह से ये पूरा शहर और ये पूरा राष्ट्र बच गया। And I'm a woman of destiny. I saved this, and look what they're doing. They're telling me to stay outside this camp. और मैं इनके लिए एक अच्छा भाग्य लेकर आई हूँ, मैंने इनको बचाया और देखो वे क्या कर रहे हैं, वे मुझे इस छावनी से बाहर रहने के लिए कह रहे हैं। Is that the way you treat a person who's done so much for them? क्या ये तरीका है बर्ताव करने का, वो भी उस इंसान से जिसने इनके लिए इतना कुछ किया? And even her parents or her siblings could have said, what is this, Rahab? You've done all this for these people and they are putting us out. They are keeping us like outcasts. और उसके माता पिता या उसके भाई बहन भी कह सकते थे, यह क्या है राहब, तुमने इन लोगों के लिए इतना सब किया और वे हमें बाहर रख रहे हैं, वे हमें अछूतों के समान रख रहे हैं। Keeping us outside the city, outside the camp, and we don't know how long we have to live like this, as if we are outcasts and low caste and whatever. और वो हमें शहर के बाहर, छावनी के बाहर रख रहे हैं और हमें नहीं पता कि हमें कब तक इस रीति से रहना होगा, जैसे हम निर्वासित हों और छोटी जात के हों और जैसा भी। She didn't feel like that at all. किंतु राहब ने ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। She submitted to the discipline and quarantine and everything that the Lord wanted, and she stayed outside. वो उस अनुशासन के प्रति समर्पित हुई और संगरोध में रही और वह सब कुछ किया जो प्रभु चाहते थे कि वो करे, और वो छावनी से बाहर ही रही। And there also we have an example in Jesus. और यहाँ भी हमारे पास यीशु का उदाहरण है। In Hebrews 13, verse 12 and 13, we read this verse. इब्रानियों अध्याय 13 में 12 और 13 आयत में हम इस वचन को पढ़ते हैं। Jesus suffered outside the gates of Jerusalem, outside the gates. So let us go to him, bearing his reproach outside the camp. इस कारण यीशु ने यरूशलेम के फाटक के बाहर दुख उठाया, इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। For our sake, Jesus bore the reproach and suffered, was crucified outside the camp. हमारे खातिर यीशु ने वो तिरस्कार सहा और कष्ट उठाया और छावनी के बाहर क्रूस पर चढ़ाया गया। And the Lord says, I give you the chance. You make the choice. और प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ, तुम चुनाव करो। You come out with me and bear my reproach, bear my shame, and you'll be rewarded. तुम मेरे साथ छावनी से बाहर आओ और मेरी निंदा अपने ऊपर ले लो, मेरी बदनामी सह लो और तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। That's our privilege. And Jesus is our example. यह हमारा सौभाग्य है और यीशु हमारे उदाहरण हैं। He was humble and he bore all that shame and ridicule and suffering for our sake. वे नम्र थे और उन्होंने हमारे खातिर वह सब अपमान, उपहास और पीड़ा सही। It's our privilege
whatever ridicule or whatever people despise us, it's our privilege to bear that shame for Jesus' sake. ये हमारा सौभाग्य है, चाहे जो भी हो, लोग हमारा कितना भी उपहास उड़ाएं या जिस भी तरह से लोग हमारा तिरस्कार करें, हमें तुच्छ जाने, यीशु के खातिर उस शर्म, उस निंदा को सहना हमारा सौभाग्य है। Not for the wrong things which we have done, but because we are Christians, because we follow Him, it's our privilege to follow Him and go with Him outside the camp. उन गलत कामों के कारण नहीं जो हमने किए हैं, अपितु इस कारण कि हम मसीह के हैं और हम उनके पीछे हो लिए हैं। सो ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनका अनुसरण करें और छावनी के बाहर उनके साथ जाएं। So, those are some of the things which and faith is always rewarded. और ये कुछ बातें हैं और विश्वास का प्रतिफल अवश्य मिलता है। Whenever we have faith in the Lord, He doesn't send us. He's a rewarder of those who seek Him. That's what we read in Hebrews. जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वह हमें वापस नहीं फेरते, वे अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं। यही हम इब्रानियों में पढ़ते हैं। First of all, we must believe God. There is God. There is a person as God. There is a God. We must believe in God and that He is powerful. सर्वप्रथम हमें यह विश्वास करना होगा कि परमेश्वर हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति है, उनका अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व है। हमको परमेश्वर पे विश्वास करना है। परमेश्वर हैं और वे सर्वशक्तिमान हैं। That's what Hebrews 1 says. Hebrews 11, first few verses. ऐसा ही इब्रानियों 1 कहता है, इब्रानियों 11 के पहले कुछ वचन। And then we take that step of faith and definitely the Lord will reward us for our faith. और फिर हम विश्वास का वह कदम उठाते हैं और अवश्य ही प्रभु हमें हमारे विश्वास का प्रतिफल देंगे। Our faith which has resulted in good works and good life and change our lives and the lives of others. हमारा विश्वास जिससे भले कार्य उत्पन्न हुए और जीवन भला बना, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में बदलाव आया। God rewards that faith. परमेश्वर उस विश्वास का प्रतिफल देते हैं। First of all, God rewarded Rahab by letting her see this mighty miracle. सर्वप्रथम परमेश्वर ने राहाब को इस अचंभे से भरे कार्य को दिखाकर उसे प्रतिफल दिया। She had faith and she was alive to see this miracle of this walls of Jericho falling down, crumbling and falling. उसे विश्वास था और यरीहो की उन विशाल शहरपनाहों को चकनाचूर होते, गिरते ढहते हुए देखने के लिए वह जीवित थी। She witnessed that miracle. उसने वह अचंभा होते हुए देखा था और इस घटना की वो गवाह थी। If we have faith, God gives us, one of the reward God gives us is that He allows us to see walls falling down, like impossible situations God sees us through. यदि हमारे पास विश्वास है तो परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं, उनका उसका प्रतिफल देते हैं, और जिनमें से एक है जब वे हमें अनुमति देते हैं कि हम उन असंभव स्थितियों, उन असंभव हालातों की दीवारों को गिरते हुए देखते हैं। He takes care of impossible situations and we think, did I ever think that I could take control of this? It's only the Lord who has done this for me. और प्रभु उन असंभव परिस्थितियों में भी हमारा ख्याल रखते हैं, उन मुश्किल हालातों में भी वो हमारा ध्यान रखते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ये खुद कर सकती थी और मैं इस पर काबू पा सकती थी। ये केवल प्रभु ही हैं जिन्होंने ये काम किया है। When we look back at our lives, all of us can think of many instances where the Lord miraculously led us. जब हम अपने जीवन पर नजर डालते हैं तो हम सभी ऐसी कई उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं जहां परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमारा नेतृत्व किया। So when we look past, don't look at the past mistakes, but say, Lord, you have done so many mighty things for me. इसलिए जब हम अतीत को देखते हैं तो पिछली भूल को ना देखें, अपितु कहें
कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए क्या ही अद्भुत कार्य किए हैं। You've given me privileges. You've आपने मुझे विशेषाधिकार दिए हैं। given me health. You've given me miraculous way to be where I am now. You've taken care of me. आपने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है और अद्भुत रीति से वहां पहुंचाया है जहां मैं आज हूँ। आपने मेरा ख्याल रखा है। You give me good family. You've taken me through so many difficulties. I see your hand taking care of me. आपने मुझे अच्छा परिवार दिया। आपने मुझे बहुत सारी कठिनाइयों से उबारा है। मैंने आपके हाथ को मेरे जीवन में मेरा ख्याल रखते हुए देखा है। If it were not for you, I would have been dead. I know that. अगर आप नहीं होते तो मैं मर चुकी होती, मैं ये जानती हूँ। We confess our faith in the Lord and faith in the mighty power of God. हम प्रभु पे विश्वास रखें, हम प्रभु में हमारे विश्वास का अंगीकार करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर की महान सामर्थ पर विश्वास रखें। That was one of the rewards she got और यह राहाब के विश्वास के कारण और उसी के कारण प्रतिफलों का मिला हुआ एक नतीजा था। for her faith. And the other reward she got was she got accepted finally into the camp of the children of Israel. और दूसरा प्रतिफल जो उसे मिला था वो था कि अंततः इज़राइल के संतानों की छावनी में उसे स्वीकार कर लिया गया था। They said, sure, you're part of us now. You belong to our family. You're an Israeli now. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अब तुम हमारा हिस्सा हो, तुम हमारे परिवार की हो, अब तुम एक इज़राइली हो। So we become part of God's family. That's our reward. तो हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं और यही हमारा प्रतिफल है। And then thirdly, God gave her a good husband. और फिर तीसरा, परमेश्वर ने उसे एक बहुत भला अच्छा पति दिया। A prince, a very rich man, a chief of from the tribe of Judah. His name was Salmon. एक राजकुमार, एक बहुत समृद्ध व्यक्ति, यहूदा के कबीले का मुखिया, उसका नाम सलमोन था। He didn't think of her like, oh, she was an ex-prostitute or she had a bad past. Nothing like that. उसने उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा कि ओह, वे पहले एक वेश्या थी या उसका अतीत बहुत बुरा था। उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। He saw this is a virtuous woman, this is a woman of faith who put her trust in the Lord. I'm going to marry her. And he married her. उसने देखा कि यह एक गुणी महिला है, ये एक ऐसी महिला है जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं उसे विवाह करूंगा और उसने उससे विवाह किया। And her son was Boaz. You know Boaz who married Ruth? That was the son. Boaz was the son of Salmon and Rahab. और उसका पुत्र बोअज था। आप बोअज को जानते हैं जिसने रूथ से विवाह किया। बोअज सलमोन और राहाब का पुत्र था। And Boaz's son was Obed. और बोअज का पुत्र ओबेद था। Obed's son was Jesse, who was the father of David. ओबेद का पुत्र येशे था और येशे दाऊद का पिता था। So God wove Rahab into that royal lineage. सो परमेश्वर ने राहाब को उस राजवंश में शामिल किया। Not only did she become a part of Israeli family, God brought her into the royal family of David, one of the ancestors of King David. वह न केवल इजरायली परिवार का हिस्सा बन गई, बल्कि परमेश्वर ने उसे राजा दाऊद के राजवंश में शामिल कर दिया, राजा दाऊद के पूर्वजों में से एक। How wonderful God is to us. He brings us into the royal family of Christ. परमेश्वर हमारे लिए कितने भले हैं, वे हमें मसीह के राजवंश में लाते हैं। Seated us in the heavenly places. From now onwards, you're inheriting the kingdom of God. उन्होंने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। अब से आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो। This kingdom is your kingdom. You're part of the royal family of Jesus Christ. यह राज्य आपका राज्य है। आप यीशु मसीह के राजवंश का हिस्सा हो। What a privilege God has given us. परमेश्वर ने हमें कितना महान सौभाग्य दिया है। So I praise and thank God for
All these things we can learn from even a sinner, an ex-sinner. मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करती हूँ कि इन सभी बातों के लिए जो हमने सीखी हैं इस पापी के द्वारा, पूर्व पापिनी के द्वारा, who was cleansed and forgiven and accepted by the Lord. And the same the Lord has done for us. एक ऐसी पापिनी के द्वारा जिसे प्रभु ने धोया, उसे शुद्ध किया, उसे क्षमा किया और स्वीकार किया, और प्रभु ने हमारे लिए भी ऐसा ही किया है। We who were dead in our trespasses and sins, God has picked us up. हम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें उठा जिलाया। And He is going to show, just like He showed Rahab as a trophy of His mercy and His love and His grace and forgiveness. वह हमें वैसे ही प्रदर्शित करना चाहते हैं जैसे उन्होंने राहाब को किया था। एक ट्रॉफी के समान उन्होंने अपनी दया, अपने प्रेम, अपनी कृपा और माफी को दर्शाया था। showed Rahab as a trophy and honored her. उन्होंने राहाब को एक ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित किया और उसका सम्मान किया। He is going to show us also before the angels and the people, everybody in the final day. वह हमको भी उन अंतिम दिनों में स्वर्गदूतों और लोगों सबके सामने इसी रीति से प्रदर्शित करने जा रहे हैं। Look at this girl, look at this woman. Her past I wiped it away, and she's a glorious daughter of mine. देखो इस कन्या को, इस स्त्री को देखो, उसके अतीत को मैंने मिटा डाला है और वह मेरी एक यशस्वी पुत्री है। God has given us, each one of us, the privilege to be a daughter of God and to be in His kingdom. What a privilege we have. परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को परमेश्वर की पुत्री होने का और उनके राज्य में शामिल होने का और रहने का विशेष अवसर दिया है, और हमारे पास कितना सौभाग्य है। Time is up, but there's a couple of verses if you like to remember. I have written it down. समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ आयतें हैं, यदि आप याद रखना चाहते हैं तो मैंने इन्हें लिखा हुआ है। And then it says in the book of Malachi, we know that Rahab's story is written in the Hall of Fame, Book of Fame in Hebrews 11. Her name comes there. और फिर मलाकी की पुस्तक में भी लिखा गया है। हम जानते हैं कि राहाब की कहानी का इब्रानियों अध्याय 11 में हॉल ऑफ फेम, बुक ऑफ फेम में वर्णन है। उसका नाम वहां पर लिखा हुआ है। Each of our names can be in a book of remembrance. और हम में से हर एक का नाम यादगारी की पुस्तक में आ सकता है। That's in Malachi. There's this verse which says, okay, there's a verse in Malachi, I'll read that, but time is up. मलाकी में एक आयत है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी, लेकिन समय पूरा होने पर है। मैं इस आयत को पढ़ लेती हूँ। Let me read this verse. Malachi chapter 3, verse 16. You can write it down. मलाकी अध्याय 3 का 16, आप इसे लिख सकते हैं। Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। So just like Rahab's name appears in the Hebrews as a heroine of faith, तो जैसे राहाब का नाम इब्रानियों में विश्वास की नायिका के रूप में आता है, each one of us, if we fear the Lord and reverence him and respect him and follow the Lord, हम में से हर एक यदि प्रभु का भय मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं और प्रभु का अनुसरण करते हैं, our names can be written in the book of remembrance which God is writing. And he is going to show our name written there. तो हमारे नाम भी यादगारी की पुस्तक में लिखे जा सकते हैं जिसे परमेश्वर लिख रहे हैं, और वे हमारे नामों को दिखाने वाले हैं। It says, here, look at this woman. She had faith in me. She trusted in me in the difficult situations. I'm honored to be her father, and she's
I'm so proud of her. इस स्त्री को देखो, उसे मुझ पर भरोसा था। मुश्किल परिस्थितियों में भी उसने मुझ पर विश्वास रखा। मुझे उसका पिता होने पर गर्व है। मुझे उस पर बहुत गर्व है। Thank God that he's writing, and we have a chance to get our name written in the book of uh, remembrance. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास उस यादगारी की पुस्तक में अपना नाम दर्ज करने के लिए मौका है। Then this verse, Psalm 113, verse 5, couple of days back, I read that. It meant a lot. फिर भजन संहिता 113 का 5 में लिखा है। ये आयत कुछ दिन पहले मैंने पढ़ी थी और इसका मूल्य बहुत है। Psalm 113, verse 5. भजन संहिता अध्याय 113 का 5। Who can be compared with God enthroned on high? For below him are the heavens and the earth. He stoops to look and lifts the poor from the dirt and the hungry from the garbage dump and sets them among princes. भजन संहिता 113 का 5। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उन्हें प्रधानों के संग बैठाए। Praise God, such a wonderful Savior we have. परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे उद्धारकर्ता कितने अद्भुत हैं। He picks us up from the dirt and from the garbage dump and sets us among princes, among his chosen people. Praise God for this wonderful life he has for us. वह हमको उस धूल पर से और उस कचड़े के ढेर से उठाते हैं और हमको प्रधानों के संग बैठाते हैं। अपने चुने हुओं के बीच में वो हमें बैठाते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो इस अद्भुत जीवन के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए रख छोड़ा है। So our time is up. Shall we close in prayer? हमारा समय पूरा हुआ। क्या हम प्रार्थना के साथ समापन करें? Our Heavenly Father, we thank you for the glorious examples in your word and the lessons we can learn. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन में पाए उन महिमामय उदाहरणों और उन पाठों के लिए जिनसे हम सीख सकते हैं। Thank you for people like Rahab and the sinful woman who came to Jesus and the Samaritan woman. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि राहाब और पापी सामरी स्त्री जैसे लोग भी यीशु के निकट आने पाए। There are people like that whom you had mercy on and you picked them up, and that's an encouragement to us, Lord. हम ऐसे भी लोग हैं जिन पर आपने दया की और आपने उन्हें उठाया और यह हमारे लिए एक प्रोत्साहन है प्रभु। Whatever our past is, whatever how our failures have been, चाहे हमारा अतीत जैसा भी रहा है, कैसे भी हमारी नाकामियां रही हों, whatever way we have even let you down, betrayed you, been unfaithful to you, yet, Lord, you're ready to forgive us if we forsake all that and we come to you. हमने आपको जिस भी रीति से निराश किया हो और आपके साथ विश्वासघात किया हो और हम आपके प्रति अविश्वास योग्य रहे हों, इसके बावजूद प्रभु आप हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं और हम उन सब बातों को त्यागते हैं और हम आपके पास आते हैं। And that's how we come to you, Lord. And we want you to take our lives and make us women of faith, Lord. और इसी रीति से हम आपके पास आते हैं प्रभु और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवनों को ले लें और हमें विश्वास से भरी स्त्रियां बना दें। In these days, when you come, please find faith in our lives, Lord. इन दिनों में जब आप आएं तो हमारे जीवनों में आप वो विश्वास पाएं प्रभु। When you said that question, will the Son of Man find faith in the final day? Please find faith in our hearts and in our lives, Lord. Help us to be women of faith. जब आपने वह प्रश्न पूछा था, पर मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कृपया हमारे हृदयों और हमारे जीवनों में आप वो विश्वास पाएं प्रभु। हमारी सहायता करें कि हम विश्वास से पूर्ण स्त्रियां बन सकें। Help us to lead our children and our families in that life of faith. हमारी सहायता करें कि हम अपनी संतानों को, अपने परिवारों को विश्वास के जीवन में बढ़ा सकें। Lord, we are not worthy of anything
any of the blessings you bestowed on us so richly. प्रभु, हम आपके द्वारा बहुतायत से उड़ेली इन सब आशीषों के लायक नहीं हैं, But we want to respond to you in faith and follow you, take up the cross, deny ourselves, do whatever you ask us to do, Lord. लेकिन हम विश्वास के साथ आपको उत्तर देना चाहते हैं और आपका अनुसरण करना चाहते हैं, क्रूस उठाना चाहते हैं, स्वयं का इनकार करना चाहते हैं और वह सब कुछ करना चाहते हैं जो आप हमें करने के लिए कहते हैं। Bear your reproach. Do whatever we want to do, whatever you want us to do. And we want to be glad to do it, Lord. हम आपका अपमान अपने ऊपर ले सकें, जो कुछ भी आप चाहते हैं कि हम करें, हम वह करना चाहते हैं और हम ये काम आनंद के साथ करना चाहते हैं। Please help us. Give us grace, Lord, each one of us. प्रभु, कृपया हमारी सहायता कीजिए, हम में से प्रत्येक को आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। We ask in Jesus' precious name. Amen. यीशु के अनमोल नाम से हम मांगते हैं, आमीन।